Hello, good afternoon, assalamu alaikum and welcome. You are watching the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. You're watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. It's been an exciting start and yesterday, Chennai, it was all about India dominating that what looked to be a difficult game. और आज एक और मुकाबला है, मगर इस मुकाबले पे जाने से पहले आप लोगों को बताते चलें कि पॉइंट्स के टेबल की क्या सूरत हाल है. ये पॉइंट्स का टेबल ज़रा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं. So far the points table is shaping up like this. न्यूजीलैंड जो कि आज अपना मैच दूसरा मैच खेलेगी are right on top with that big net run rate 2.15. साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे also with a big 2+ net run rate. पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, बांग्लादेश चौथे नंबर पे है. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पांचवें छठे नंबर पे है. याद रहे कि टॉप की जो 4 टीमें वो सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करेंगी. अफगानिस्तान, नेदरलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड, well they are going to have to work very hard to climb up, but this is a long tournament. ये अभी एक मैचेस के बाद मैं आपके सामने पॉइंट्स टेबल आया है. हर टीम ने हर दूसरी टीम से मैच खेलना है. So it's a long way ahead and it's going to take some time before clear out who will be the final 4. So ये बड़ा ज़रा टाइम लगेगा, बट आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है. मेरे साथ पेविलियन में मौजूद I've got 4 legends, 4 icons of the game, 4 gentlemen who've served the game of cricket really well and Pakistani cricket, 4 former captains and great cricketing minds. I've got the young dynamic Shoaib Malik with me. Good morning, Shoaib, and assalamu alaikum. Rather, good afternoon, assalamu alaikum everyone. With that, I've got Mr. Dependable, one of the most successful test captains in Pakistan's test cricket history, and a mind that looks and dives deep into information of every game, every angle, even angles that you and I could have never thought about. Misbah, assalamu alaikum, Misbah, and welcome to the show. With that, I've got the man himself. इनको आप लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू टाइटल दिया है सिल्वर फॉक्स का, बिकॉज ऑफ हिज वेरी नाइस प्रिटी लुकिंग सिल्वर हेयर and that silver beard. One of the finest wicket keepers the game has seen. Also captain Pakistan, served the game in different roles. Pakistan Cricket Board के लिए भी उन्होंने मुख्तलिफ roles में काम किया है and kept the wickets when Agha Bata were operating from both ends. I've got the pleasure of having with me Mr. Crooked Fingers, Moin Khan. Good morning, good afternoon. Good morning. आपकी हो गई? हाँ, बस morning afternoon साथ में 3 मिनट का फर्क पड़ा है अभी morning और afternoon के बीच में. Good to have you here, Moin. Thank you. And finally, the cricket royalty himself, the undisputed all-rounder king, the man who's delivered countless victorious punches for Pakistan around the world and captained the team as well. I've got His Royal Highness Wasim Akram. Good afternoon, Wasim. Good afternoon जी, good afternoon. बादशाह सलामत, आदाब बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो. चले जनाब. और दोस्तों, आज का मैच आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. This is the game that is going to happen today. हैदराबाद से आप लोगों के लिए बराह रास्त. It is the Kiwis, New Zealand versus the Netherlands. आज का ये मैच है हैदराबाद से बराह रास्त आपकी खिदमत में 1:30 बजे आएगा आपकी स्क्रीन पे. अब से लेके तब तक हम आपके साथ हैं यहाँ पर और बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट एंड ओपन द डिस्कशन विद व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर न्यूजीलैंड इन दिस वर्ल्ड कप. वसीम, complete performance against the the champions England. जिस तरीके से जीते हैं, बड़े आसानी से स्कोर चेस किए हैं. and New Zealand has been a very consistent side. आप कोई भी वर्ल्ड कप उठा कर देख लें, स्पेशली लास्ट 3 to 4 वर्ल्ड कप, सो इवन बिफोर they almost come from इधर से आके वो क्वालिफाई कर जाते हैं for the last 4. It's a big deal and I mean they played 16 games so far against the non-test playing nation and they won 16. So आज easy नहीं लेंगे मैच को. Every game like we've been saying it's very important because लंबा टूर्नामेंट है. 0.1 रन रेट का भी फ़र्क पड़ सकते हैं in the end to qualify for the top 4. So every game is very important for each team और I think न्यूजीलैंड जैसी टीम नीदरलैंड की टीम को आसान नहीं लेगी और लेना भी नहीं चाहिए. मैं यही इसी बात करने लगा था मोइन कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी ये एक शायद कमज़ोर टीम है या इस टीम में अभी इनएक्सपीरियंस है या उस तरह का इनका एक्सपोजर नहीं है. बट नीदरलैंड्स ने कुछ उनके कहते हैं ना ग्लिम्पसेस ऑफ सॉलिड टीम नजर आए थे जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था. सो न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली आर नॉट गोइंग टू शो एनी काइंड ऑफ मर्सी टुवर्ड्स नीदरलैंड. बिल्कुल फखर, वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में दुनिया की टॉप टीम्स खेल रही हैं. एक प्रोसेस के थ्रू आए हुए. तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई भी टीम ऐसी गलती करेगी किसी भी ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ जो प्रीवियसली वर्ल्ड कप नहीं खेली हुई या कम खेली हो कंपैरेटिवली.
तो बिल्कुल एज ए प्रोफेशनल सोच तो यही कहती है कि आपको बिल्कुल मैच जो है बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा, बिकॉज के जो ग्लिम्स हमने देखे हैं पिछले मैच में दैट वाज गुड। लाइक पाकिस्तान के खिलाफ भी इतने बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगर उनके बैट्समैन कैरी ऑन करते थोड़ा सा तो मुश्किल होती डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए, यू नो। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा न्यूजीलैंड के लिए ऑफ कोर्स कि जिस फॉर्म से न्यूजीलैंड आ रही है, जिस तरह लाइक इंग्लैंड को उन्होंने हराया, यू नो, तो कॉन्फिडेंस तो नेचुरली बिल्डअप हो गया होगा बहुत ज़्यादा, बट अगेन वो हल्का नहीं लेंगे किसी को। आई थिंक वेरी बैलेंस साइड न्यूजीलैंड कंपैरेटिवली टू द नेदरलैंड्स, but still they'll have to fight it out for this match. I think that's a good team. Misbah will always respect the opposition no matter who they are playing. But for New Zealand, outstanding Rachin Ravindra both with the bat and the ball, और अपनी वर्ल्ड कप की डेब्यू में सेंचुरी उन्होंने जो दागी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। बिल्कुल, जब से वो खेलना शुरू हुए हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इम्पैक्ट डालना। एक नया प्लेयर आता है और वो मैच पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। लुक एट हिज कॉन्फिडेंस एंड द शॉट्स। आई मीन वर्ल्ड चैम्पियन के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, बड़ी स्टेज है, पहला मैच है वर्ल्ड कप का, एंड द वे ही बैटेड आई थिंक दैट वाज सुपर। और अब आगे चल के आप अंदाज़ा करें कि व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू फॉर न्यूजीलैंड इन द कमिंग मैचेस। सो इट इज़ ऑलवेज गुड, पहला मैच, इस किस्म की परफॉर्मेंसेस और शॉट्स में जो मैच्योरिटी, जो क्लास नज़र आई है, दैट इज़ समथिंग विच एवरीबॉडी विल बी डेफिनेटली लुकिंग फॉर ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप। शोएब, जब इतनी ज़बरदस्त आप बैट से एक दफ़ा परफॉर्मेंस दे दें और आपके बल्ले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन टीम की और आपके फैंस की शुरू हो जाए, तो बॉलिंग पे उससे कोई असर आना शुरू हो जाता है? आप कहते हैं यार ये मैं ज़रा ये इसके ऊपर तवज्जो दूँ, और फिर बॉलिंग स्किप होनी शुरू हो जाती है, पीछे रहनी शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जब हम लोग रैंकिंग्स देखते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो इसलिए देखते हैं क्योंकि जो ऑलराउंडर्स हैं, जिनको ऑलराउंडर बोला जाता है, जब वो बॉलिंग करते हैं तो वो सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करते हैं, और जब वो बैटिंग करते हैं तो वो सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो आई एम श्योर आपको अगर आप दो डिपार्टमेंट्स में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है एज एन ऑलराउंडर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। उस दिन उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट उन्होंने ओवर्स भी किए हुए थे, आउट भी किए हुए थे, और उसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस था उनकी बैटिंग में। लेकिन ये है कि न्यू गेम, न्यू अपॉर्चुनिटी, और जो हो गया ऑफ कोर्स यू टेक दैट कॉन्फिडेंस टू द नेक्स्ट गेम। बट मुझे ये लगता है कि वो एक ऐसे बैटर हैं, ऐसे ऑलराउंडर हैं जिससे न्यूजीलैंड टीम और इवन जो न्यूजीलैंड के लोग हैं उनकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होगी। और अगर आप फर्स्ट मैच में ऐसी इनिंग्स खेलें, सो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन प्राइम फॉर्म, just continue the same form. I agree with you. Tim Southee and Lockie Ferguson will probably make a comeback now. They'll be back in the squad. So who gets left out? That's a good problem to have, I suppose, in any team support. But ये main bowler उनके लूकी फर्गसन का हमें पता है कि तेज़ है और मिड ओवर्स में प्रेशर डाल सकता है, स्पेशली इनएक्सपीरियंस साइड लाइक नीदरलैंड। एंड टिम सदी का एक्सपीरियंस का हमें पता है कितना एक्सपीरियंस है ये वाइट बॉल क्रिकेट में, और उनका कप्तान भी शायद आज ना खेले बिकॉज आई हैव हर्ड कि ही डजंट वांट टू रिस्क। हम बार बार कह रहे हैं कि लंबा वर्ल्ड कप है, लंबी रेस है, सो मे बी ही माइट नॉट बी एबल टू प्ले बिकॉज ऑफ हिज नी इंजरी। ही हैड अ बिग ऑपरेशन, ही इज लुकिंग गुड, बट टिम सदी जो भी निकालेंगे, आई सपोज इवन दैट बॉलर क्या नाम है उसका, Henry he is performing, he's bowled well. अब देखो किसको छोड़े पीछे, या अब देखना है कि किसको, एक को, दोनों को शायद ना खिला पाएं, एक को खिला पाएं, I suppose. Actually, Jimmy Nisham played the last game, so they might go with full-fledged 3 fast bowlers. तो जो कमी मुझे लगता है, लोकी फर्गसन जब नहीं खेलते तो जो एक पेस वाला बॉलर वो 150 अराउंड 150 बॉल करता है, तो दे ऑलवेज प्रेफर कि हमारे पास एक बॉलर ऐसा हो कि अगर मीडियम पेस नहीं हो रही, स्विंग नहीं हो रहा, तो जो आके थोड़ा सा जो रोल हारिस रऊफ ने प्ले किया उस किस्म का रोल आके दूसरी टीम को बाउंस आउट अगर करना है, तो वो मुझे लगता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, शायद उसको ये कहीं ना कहीं लेके आए। All right, with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. You're watching A Sports, Sen Sports, and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम. आप देख रहे हैं A Sports, Sen Sports, and the ARY Zap app.
Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 and we are going back to Hyderabad today जहां पे आज न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा नेदरलैंड्स के साथ। हम न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से बात कर रहे थे और उनके जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, मगर इससे पहले अभी चूँकि हम we were talking about the outstanding innings there by Ravindra. Let's take a look at a package that we have about him. Really nice there. बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने बोली है कि I just want to do my thing and help my team win some games. But you see, that shows how intelligent this boy is, apart from being a talented cricketer. एक तो he came from the proper ranks. Twice he played in the 19 World Cup. He said that's a big deal coming from. हालांकि न्यूजीलैंड में players का pool बहुत कम है because it's about 4 million. Just over 4 million population there. And then he said, I used to go to India to play club cricket and coached by Indian coaches, and that's why I'm slightly better player of spin. I mean, we've seen the way he played other day. The 100 he got, looked very comfortable, looked in the zone, and the shot selection जो बड़ी important होती है ओपनर के लिए, इसकी बड़ी precise थी शॉटें, बनी जो शॉटें इसकी हैं उन्हीं पर रह के out of the box नहीं इसने सोचा, and that's why I think he's a consistent player. And looks, and then he's pretty on the eyes as well when he bats. Yes. The way he bats makes it look very easy. Absolutely. और दूसरी अगर मोइन आप ने नोट किया हो कि ये जो सर वसीम अब बता रहे थे कि वो इंडिया जाके भी सीखते रहे, उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि मैंने सिर्फ बैटिंग ही नहीं वहाँ पर सीखी, अपनी बॉलिंग की लाइन और लेंथ की जो एडजस्टमेंट्स हैं इंडिया में कि स्पिनिंग विकेट पे, चूंकि हमें न्यूजीलैंड में ऐसी विकेटें नहीं मिलती, वो भी मैंने वहाँ पर जाके उस पर बहुत कुछ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाते हैं। That's a very good analogy by the way, Moin. तो वहाँ से क्रिकेट अगर किसी को सीखनी है और स्पेशली इस रीजन के अंदर जहाँ पे स्पिनर्स पिचेस मौजूद होती हैं, स्पिन के बड़े बड़े लेजेंड्स मौजूद हैं, तो आपको एक मौका मिलता है अपने आप को प्रोग्रेस करने का। आई थिंक एक कल मिसबा ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अपनी अप्रोच भी होती है ना बंदे की, अपने आप को किस तरह अप्रोच करता है, मैंने किस जगह पे जाके क्रिकेट छोड़नी है, क्या स्टैंडर्ड छोड़ के जाने, तो ये अपनी जो अप्रोच होती है ना यही आपको लिफ्ट करती है जब आपको सीखने का शौक होता है। तो आई थिंक वो तमाम बातों से ये लगा कि ही इज़ वेरी कीन क्रिकेटर, ही लर्न एंड ही वांट टू प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी बैटिंग में, जो वो स्पिन की बात कर रहे हैं, यूजिंग द क्रीज, वो पूरा कमिट करते हैं, जब आगे है बॉल तो आगे जाते हैं, बट खामखा फॉरवर्ड नहीं चले जाते। स्पिनर पे ये बड़ा ज़रूरी है, मलिक को पता है इस चीज़ का कि जैसे ये भी खेलता था स्पिन को, तो वो जो इतना के एरिया है आपका, उसको अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो एक अच्छे बॉल को वो बड़े आराम से फ्रंट लेग को क्रॉस नहीं लेके जाता, उसको क्लियर रखता है। बीच के बॉलों को भी कवर में, इवन उसको चौके भी मारे हैं उसने, स्क्वेयर ऑफ द विकेट। फिर जो मोइन अली को एक शॉट मारा है, वो इतना शॉट नहीं था बॉल, लेकिन उसने वेट किया है और पूरा वेट पीछे ट्रांसफ़र करके उसको पूरा शॉट मारा है। तो ये नॉर्मली इंडियन प्लेयर्स को अगर आप देखें जो बहुत अच्छे स्पिन के प्लेयर हैं वो इस तरीके से खेलते हैं। तो वो उन्होंने इंटरव्यू में बात की कि यहाँ पे आके जो वो खेले हैं उससे ये फ़र्क पड़ा है कि खामखा आप डरे हुए नहीं है कि स्पिन है तो करते क्या है बाहर के प्लेयर, पहले कमिट कर दिया अपने आप को फ्रंट फुट पे, नहीं, ही इज़ वेटिंग। और मुझे थोड़ी सी झलक ना संगाकारा की भी नज़र आती है, द वे ही यूज्ड टू प्ले अगेंस्ट स्पिन। सईद अजमल को बहुत ज़बरदस्त खेलता था, तो इस जो पिछली इनिंग थी he played spin very well. I think very interesting stat जो हमें दिया गया है ये कि रचिन रविंद्रा लिस्ट ए में काफ़ी पोजीशन पे इसने बैटिंग की है। एज एन ओपनर नंबर 2 पोजीशन, 16 innings, 563 runs, averaging 35. Number 3 he's averaging 50 with 305 runs in 7 innings, and then number 6, then number 7, number 8, number 10 as well he batted. So he batted almost every position in list A. And he's a bright future for New Zealand. इससे क्या है कि उनकी जो इनिंग्स उन्होंने उस दिन खेली अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वो आपने वो वाले ग्लिम्पसेस जो अभी स्टैट्स बताए हैं वसीम भाई ने, वो नज़र भी आए। उनका ओपनर बहुत जल्दी आउट हो गया था, फिर उन्होंने जो पावर प्ले के ओवर्स थे वो खेले, फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स खेले, फिर उन्होंने गेम फिनिश किया। तो जो ऐसा बैटर हो जिसने सब नंबर्स पे बैटिंग की हो, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि मुझे आता है सब जगह पे हर कंडीशन में खेलना, और जो भी अगर क्रंच सिचुएशन है या विकेट को रोकना भी है, रन्स भी बनाने हैं। सो वी सीन दैट कि उनको ये सारी जो चीज़ें हैं उनको पता है। और आई गेस इन दी एंड जब आप सारे नंबर्स पे खेलते हैं या डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, एंड ऑफ द डे इट्स योर
goal. It's your responsibility So, to आपके learn. ख्याल में शोएब, मिसबा एंड मोइन, इवन यू कैन चिप इन इफ यू वांट, आजकल के दौर में जो क्रिकेट जैसे जा रही है, हमारे दौर में था कि ओपनर है तो वो ओपन ही करेगा, एट द मोस्ट कोई प्रॉब्लम हुई तो 3 पे आ जाएगा, मगर आजकल के दौर में इन माय ओपिनियन के बैटर्स शुड नो हाउ टू बैट इन एवरी पोजीशन. That's very important. I want to hold that discussion there, gentlemen. I do apologize for that, but you know, मेरे ऊपर एक मजबूरी है. I'm listening to the producer, and I have to take a break on the Pavilion. When we come back, we'll continue from where we are signing off. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इन द एयर बाय ज़ैप ऐप, और हमारी आईसीसी वर्ल्ड कप की कवरेज रवां दवा है. मेरे साथ पवेलियन में मौजूद पाकिस्तान के 4 बड़े नाम, 4 आउटस्टैंडिंग जेंटलमैन हु सर्व द गेम ऑफ क्रिकेट रियली वेल. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and the great Wasim Akram. ब्रेक में जाने से पहले हम न्यूजीलैंड के हवाले से बात कर रहे थे. आज न्यूजीलैंड बामुकाबला नेदरलैंड से हैदराबाद से आपकी खिदमत में 1:30 बजे बराह रास्त पेश करेंगे. अब बात करते हैं ज़रा नेदरलैंड्स की टीम के बारे में. हम अभी शुरू में जब भूल गए नहीं, हम नेदरलैंड्स की टीम के बारे में बात कर रहे वसीम, थे. मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था ब्रेक से वहाँ से वो प्रोड्यूसर कह रहे हैं नेदरलैंड्स की टीम पे चले जाए, बट आई डू एग्री. लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज़ दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वी विल टॉक अबाउट इट. I can push back the producers, don't worry. ओए बाज़ आओ, वसीम ने एक सवाल पूछा बेहतर है. हमारे कंप्यूटर इसका जवाब शुरू करेंगे. जी, कंप्यूटर. आजकल के बैटर्स को यू थिंक हर जगह पे बैटिंग करने की, स्पेशली टॉप 6 में एबिलिटी होनी चाहिए? द वे क्रिकेट इज गोइंग, बिल्कुल होनी चाहिए. मेरे ख्याल में ये अपने लिए आपके बड़ा इम्पोर्टेंट है. सडनली आप देखें कि पाकिस्तान में होता क्या है कि आप नए बॉल पे अक्सर आपका मिडल ऑर्डर जब अचानक बारी आती है तो प्रॉब्लम होती है हमें. वो यही वजह होती है कि हम लोग वो 1 नंबर, चौथे, 5वें, छठे पे खेलते हैं और उसी पे ही खेलते रहते हैं. तो नया बॉल ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा सा, एक तो मेंटली आप उसके लिए तैयार नहीं होते. जब आप क्लब में या कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में अगर अपने नंबर चेंज करते हैं, ओपनर नीचे खेलता है और नीचे वाला ऊपर खेलता है, तो वो जो एक मेंटली आप पे प्रेशर होता है या ब्लॉकेज होते हैं ना कि यार पता नहीं क्या होगा, वो ख़त्म हो जाता है. यू गेट यूज्ड टू ऑफ दैट. आपकी अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट आती है. देन यू आर मोर बेसिकली सूटेबल या मोर जिसको कहते हैं कि आप टीम के लिए इफेक्टिव हो जाते हैं. किसी भी नंबर पे आप खेलते हैं, स्पिन को भी उतना अच्छा खेलते हैं, नया बॉल भी खेल सकते हैं, पुराना बॉल भी खेल सकते हैं. एंड डिफरेंट सिचुएशंस अराइजेज इन अ टेस्ट मैच. अगर आप नीचे खेल रहे हैं, कई दफ़ा 5वें, छठे पे आपको नया बॉल खेलना पड़ जाता है. तो अगर आप यूज्ड टू हैं देन यू आर अ कंप्लीट बैट्समैन. तो मुझे लगता है कि जब डेवलपमेंट भी हो रही होती है किसी भी प्लेयर की नीचे से, तो उसको ज़रूर ऊपर नीचे सारे नंबर्स पे खेलना चाहिए. सबसे पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. हाँ, सबसे पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा. क्योंकि सबकी डिफरेंट नेचर है. कोई 1-2 इनिंग्स में फेल होता है तो वो ये सोचना शुरू कर देता है कि नहीं यार मेरा ये नंबर है, मैं इस पे क्यों जा रहा हूँ. ये नहीं होना चाहिए. आपको क्लब क्रिकेट से, जैसे मिसबा भाई ने कहा, आपको खेलना चाहिए एज अ बैटर. आपको हर नंबर पे खेलना आना चाहिए. क्योंकि आपको, अगर आप कंसिस्टेंटली रन्स बनाना चाहते हैं, आप वर्ल्ड क्लास बैटर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको हर टाइप की क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए. वही याद नहीं, ओवरसीज टूर पे हमारी जब भी बारी आई है टेस्ट क्रिकेट में 78वें ओवर ही आई है. 80 के बाद नया गेंद आता है. 75वें ओवर या 72वें ओवर मोइन या मुशी खान में आते थे, 5 नवा गेंद 6 ओवर रह गए ने. एंड आई यूज्ड टू कर्स देम. सर यार कॉन्फिडेंस दो, तुम पहली ट्राई जा रहे हो. और मजे की बात यह है कि 90 ओवर्स होते हैं ना, तो लास्ट वाले जो ओवर थे ना वो 10, उसमें मेन बॉलर जो पूरा जोर भी लगाते हैं क्योंकि उसके बाद रेस्ट है. That was a first world problem, but it was when I. It was a problem. It is still a problem, I think. है वैलिड क्वेश्चन वसीम भाई का. जो टॉप 6 बैट्समैन है, मिसबा ने भी कहा, शोएब ने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, ये जो शोएब ने बात बोली, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ हर नंबर के ऊपर. और दोज हु प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उन पे तमाम सिचुएशंस आती हैं, यू नो, उन तमाम प्लेयर्स पे. तो वो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. हर कोच की, हर कैप्टन की एक डिफरेंट यू नो अप्रोच होती है टुवर्ड्स हाउ यू बिल्ड योर टीम, यू नो. तो उस पर भी डिपेंड करता है. एक अगले ब्रेक के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो एक थोड़ी सी डिबेट है, लंबी है. क्रिकेटर्स नाउ जो रेगुलरली खेल रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन दे प्ले कपल ऑफ लीग्स हियर एंड देयर, दे अर्न रीजनेबल मनी माशाल्लाह. सो दे शुड ट्राई टू स्पेंड इट ऑन देमसेल्व्स. ऑफ सीजन में गेट देयर ओन ट्रेनर. कभी ये वाली न्यूज़ भी तो आती है ना मीडिया में, जी वो प्लेयर कह रहे हैं जी मैं इस नंबर पे नहीं खेल सकता. तो
एकदम एज ए क्रिकेटर हमको शौक लगता है। आजकल तो मीडिया का भी पता नहीं लगता कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी ये बड़ा मसला है आजकल। किसी की फाख्ता, किसी का तोता, किसी का खोता, वही न्यूज़ मिलिया रहती है। वसीम भाई वो तभी है ना कि आप क्योंकि यूज टू, अगर एक प्लेयर प्रिपेयर्ड है उसके लिए और उसने फर्स्ट क्लास में या कहीं उसकी तैयारी की हुई है तो ही विल नॉट माइंड दैट। जैसे सऊद की बात है, नंबर 3 पे खेलता था बट मेंटली उसने अपने आप को प्रिपेयर किया कि भाई वहाँ जगह खाली नहीं है, ना टेस्ट में ना वनडे में, तो आई हैव टू बैट एट नंबर 5। उसने अपने आप को उसके लिए तैयार किया है। नाउ ही इज सक्सेसफुल, ही इज स्कोरिंग रन्स। रिजवान ने प्रोग्रेस किया है, ओपन आके बड़े रन्स किए। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि शोएब मलिक ने 2 दिन में 2 बड़ी विजडम वाली बातें की हैं। कल उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, यू नो आपने खुद ही करना होता है सबसे पहले, और आज भी कहा कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके अंदर। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो यू नो शोएब, दैट्स व्हेन यू लर्न 2 intellectual things from you in 2 consecutive days। अल्लाह करे तू हैट्रिक कर दे कल किसी तरीके से, ठीक है ना। टाइम फॉर द पिच, टाइम फॉर द पिच। ओ पायन मैनू गल करन दियो खुदा दा वास्ता। टाइम फॉर द पिच रिपोर्ट कर ले बात बायोनिक। Oh, fantastic to be here in Hyderabad with all this sunshine. Absolutely brilliant. There's a nice breeze coming across here as well. Now, standing on this black soil surface is a little bit to the left of a square, so the dimensions will be a little bit interesting. To my right, it's about 69 meters. To my left, about 62. So captains could use that big side as a defensive ploy to get batters to hit into that area. Batters will be looking to pepper that shorter side. Okay, enough about dimensions. The outfield is brilliant. I'll go to Katie Martin now to find out how you think this surface is going to play. Today, Bish, I'm saying I'm glad I'm a batter. This is an absolute batting paradise. Australia played Pakistan here in the warm-up game. We've seen over 700 runs, but for the Netherlands, it's about their spinners for me that are going to be effective on this wicket. They've got Ackerman and Dutt who bowled fantastic. They negated the bounce and the extra spin off this wicket. Ackerman, he gets a lot closer to the stumps. His grip's a little bit stronger in comparison to Dutt, who bowls a little bit wider but will angle it in and get that extra bit of bounce. So they were brilliant against Pakistan. They use their spin a lot, and interestingly enough, Dutt does come wider angle but extra bit of bounce. Think about the 2 New Zealand left-handers, Conway, Ravindra. Assuming both of them will play today, those 2 spinners are going to be really, really important to try and negate what New Zealand do. That's fantastic to hear. Love those challenges. Looking at it, the groundsman, well, you know how groundsmen are. They'll say it's a good batting surface. We'll see if New Zealand can reproduce all those runs they scored. There you have it, the pitch report brought to you by Onik. Wasim? So far, the pitch reports that we've had have been absolutely not spot on. What do you think about the one that we have today? वो सेफ खेले हैं दोनों कमेंटेटर। कह रहे हैं 3.5 रहना। हाँ वही सेफ खेले हैं। बैटिंग ट्रैक बता दिया है कि हल्का सा टर्न भी होगा, बता दिया है। ये भी कह दिया नए गेंद से हल्का सा घूमेगा भी। सेफ बैट। Let's have a look at the picture of the Hoover. Looks good. यहाँ से तो जो नज़र आ रही है थोड़ी सी ड्राई नज़र आ रही है, कॉम्पैक्ट लग रही है। हाँ कॉम्पैक्ट लग रही है। जो थोड़ा सा घास आपको नज़र आ रहा है वो रोल अच्छा हुआ है, इसका मतलब विकेट जुड़ी रहेगी। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि पिच रिपोर्ट में रिलीज़ पॉइंट कहाँ से आ गया बॉलर का। वो किसी प्रोड्यूसर ने कहा चलो यार यही चला दिए। बट ओवर एंड ऑल दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक in India. Average score first batting is 288. So I suppose और यहाँ पे ड्यू फैक्टर भी है। हमने देखा आई थिंक पहला मैच न्यूजीलैंड का इंग्लैंड से यहाँ पे हुआ था हैदराबाद। एनीवन रिमेंबर्स? अहमदाबाद नीदरलैंड्स का हुआ यहाँ पे। सो लुक्स अ गुड ट्रैक। अब देखना है कि ड्यू फैक्टर है कि नहीं, टीम जीत के पहले बैटिंग करती है या बॉलिंग करती है। Yeah, toss is going to be very interesting to find out कि इस पे क्या होता है। And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports and Sports and the ARY App. Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports and Sports and the ARY App. Our coverage of the ICC World Cup continues today. It is New Zealand versus Netherlands. और मेरे साथ Pavilion में मौजूद I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. Let's start talking about the Netherlands team. But before we do, let's listen into what Colin Ackerman has to say. Well, Colin, you come back here to a ground you've had experience on. What did you learn from that outing against Pakistan? Yeah, it looks like a pretty good wicket in Hyderabad. In the middle overs, it can turn a bit.
But in saying that, we've got to be at our best today against New Zealand. They're an experienced unit, so we're going to have to be at our best form today. When you look at that performance, that's a powerful Pakistan side. What did you take from that? Did you get confidence? Did you get areas that you can work on? Yeah, 100%. I think what we found is that we can, perform at this level. We can face guys that ball quick. We can face guys that spin the ball. So it's just about doing the basics for longer. I think that's going to be key for us today. You bat up the top, and New Zealand's strength is at the start with Bolt and Henry. So I guess you've worked pretty hard on that. Yeah, 100%. I think it's going to be a theme of this World Cup is wickets in the power play. So it's how we combat that. Forming a solid base up at the top is going to be crucial. You got wickets as well. You had a good all-round outing. Yeah, it was a decent day. There was a bit of turn on offer, which is great. So hopefully more of it today. It's only your second appearance as such in the World Cup. How is this new squad, first of all, adapting to India? You've been here quite some time. You had a decent build-up. Yeah, we spent a bit of time here, just over 2 weeks now. So I think we've acclimatised to the conditions, got used to the heat, got used to the ball spinning a bit more than usual. So I suppose today we're going to put in that perfect performance against New Zealand. It's a bit different from Grace Road. It is a bit different. Grace Road does not turn at all. So yeah, slightly different, slightly higher temperatures. So yeah. What do you think in terms of what you saw the other night? What do you need? What will you, if you bat first, what will you need out here, you feel? What kind of score? Yeah, I thought 280, 290 was a pretty good score against Pakistan. I think it's all about controlling the middle overs. That's going to be key for us today. Our keyword is big partnerships. We saw Basi and Vikram, get us going in the middle overs, but we couldn't quite extend that partnership into a big, 120, 130 run partnership. So that's going to be our big focus today. Okay, enjoy. All the best. Thank you. Cheers. Right, there you have Colin Ackerman. मोइन इन्होंने अपने जो विकेट कीपर के बारे में जो बात बोली है उसके व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट होल सिचुएशन आई थिंक मेरा ख्याल है अच्छे विकेट कीपर है नहीं हंसने की क्या बात है यार क्योंकि मोइन में विकेट की नींद पे कोई बात नहीं किसी दोबारा इंटरव्यू सुना ही नहीं मुझे नहीं सुना है क्या सुना है नहीं सुना है आप पकड़ेंगे दोबारा वसीम भाई के इशारों में जो कर रहे हैं ना आप अपना काम करें यार आप खुद डिक्टेशन ले रहे हो एक मिनट आप लोग जल्दी हंस पड़े इनको जरा जुमला पूरा विकेट कीपर अच्छा है बात ही नहीं है विकेट कीपर की शोएब जिस वक्त मुझे वीडियो दिखा रहा था कौन सा वीडियो दिखा रहा था आपको वसीम भाई इशारे करे जा रहे हैं उधर से कौन सा वीडियो दिखा रहा था अच्छा उनके क्यों इशारे अच्छा उनके इशारे सुन के क्यों कर रहे हैं आप ये बताएं पहले आपको शोएब कौन सा वीडियो दिखा रहा था यार ये पहले बताएं एक मैंने बात नहीं बात को घुमाए नहीं आप मैं नहीं घुमा रहा आप सीधा सीधा जवाब दें आप उनके इशारों पे कौन सा वीडियो दिखा रहा था आप सारे सवालात ना उनके इशारों पे मुझसे ला दे मेरा नाम ला दे मेरा इंटरव्यू तो आप ना सुनी दे ला मेरा गलती मेरी वो तो ठीक है एक तो सुने इधर प्लानिंग हुई पूरी कोई प्लानिंग नहीं किया सारी बातें अपनी जगह एक आईसीसी वर्ल्ड कप का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है एक प्लेइंग टीम का इतना बड़ा मेंबर जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं यार और आप वीडियो देख रहे हैं और कौन सा वीडियो देख रहे हैं ये बता भी नहीं रहे ऊपर से आप असल में हमें कोई फिक्र नहीं है देखने वालों को आपके वीडियो के ऊपर सवालिया निशान लग गए बहुत सारे क्या ये कौन सा वीडियो आपको दिखा रहा था चलिए आपको एक फैक्ट बता चलूं चेंज द सब्जेक्ट है तो पहले ढेले काट ले मोइन एक सेकंड पहले नीदरलैंड में क्रिकेट शुरू हुई थी 19th सेंचुरी में बाय द वे और इनको जो रुकनीयत मिली थी आईसीसी की 1966 में मिली थी जबरदस्त वहाँ पे क्रिकेट इसका मतलब काफी पुरानी हो रही है बट इन जनरल आई थिंक सॉकर इज अ बिगेस्ट स्पोर्ट जबरदस्त आप ये फैक्ट लेकर आए डॉक्टर नुमान नियाज टाइप का बड़ा जबरदस्त अच्छा डिटेल अंदर से बहुत पीछे से लेकर आया मेरा आईडी कार्ड का तो मैंने अच्छा अबे वो इतना ज्यादा हम नहीं कर सकते बट लेट्स गो बैक टू दैट यू नो दोस फैक्ट्स इन दैट क्रिकेटिंग हिस्ट्री जो डॉक्टर साहब का जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनको बड़ा उस पे अबूर हासिल है इसके ऊपर यू गॉट अ ग्रेट इन डेप्थ थिंग ऑफ दैट और मोइन खान को आपको पता है ऑफ कोर्स के इस इंटरव्यू के बारे में कितना पता है एक सीरियस सवाल पूछ लूँ आपसे अगर आपकी इजाजत हो तो प्लीज कॉलिन एक्करमैन कह रहे थे कि उन्होंने पूछा इंटरव्यू करने वाले ने कि आपका जो पिछला मैच था पाकिस्तान के साथ उसमें क्या चीज़ आपने जो है सबसे ज़्यादा सीखी उस मैच से तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि सबसे बड़ी हमारी लर्निंग थी पॉजिटिव था वो ये था कि हम इस लेवल पे compete कर सकते हैं हमने पाकिस्तान को मतलब एक मैच डाला उनके साथ एक वो दिया दैट्स अ ग्रेट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड टू थिंक इन करेक्ट बिल्कुल करेक्ट मुबारक हो
पूछ लो ना कितने नंबर पे खेले सन। इसके ये साथ कौन से ही नंबर पे खेलते हैं आपको याद है एकरमैन? मैं तो उसकी बॉलिंग देख रहा था, मैंने उसकी बैटिंग देखी पर उसका स्वीप जरूर देखा था। 4 थे। वो भी मैंने ही बताया आपको। हाँ, वीडियो तो भी तो मैं ही देता हूँ। वीडियो कौन सा दिखा रहे थे सर? आप लोग जरा ब्रेक लेना, मैं वीडियो पे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। क्या भाई का इंटरव्यू देखिए आप लोग ब्रेक लें, मैं जरा वीडियो पे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक टू द Pavilion। मैं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप। With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. और आज मुकाबला हैदराबाद से आप लोगों के लिए बहराज लेकर आ रहे हैं. It is New Zealand versus Netherlands. Let's take a look at the match preview. Santner there, Misbah, actually acknowledging the fact that Netherlands bat deep and that they have a strategy against them. Interesting that कि New Zealand एक तो उनको हल्का ले नहीं रहे और Netherlands look that they're much more confident after the first game, even though they lost to us in that opener. Yeah, obviously a lot of positives for them. Start अच्छा था, middle overs में जो वो बात कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा पार्टनरशिप को स्ट्रेच करना है। विक्रमजीत सिंह जिस तरीके से खेल रहे थे, just after scoring 50 got out. सो उस पार्टनरशिप को स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। और सेम जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो मिडल ओवर्स में स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त लिया, मिडल ओवर्स में कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप लगी है तो वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाए, विकेट्स नहीं ले पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 290 ऑलमोस्ट 90 रन, जो कि इस विकेट पे अच्छा स्कोर है। राइट। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, स्टार्ट मिडल एंड देन फिनिश इट वेल। आप कहीं पे भी आगे पीछे हो गए तो मैच आपके हाथ से निकल सकता है। एंड सेम गोज इन द बैटिंग डिपार्टमेंट, पार्टनरशिप्स आपको कंटिन्यू करनी है एंड तक अगर आपने अच्छी टीमों के खिलाफ जीतना है। आज नेदरलैंड्स के बॉलर्स की क्या अप्रोच रहनी चाहिए शोएब अगेंस्ट दिस न्यूजीलैंड बैटिंग अटैक दैट वी हैव सीन? आई थिंक अगर देखा जाए तो इनके पास दे प्ले विद 2 ऑफ स्पिनर्स नीदरलैंड्स जो है, और अगर हम न्यूजीलैंड के बैटर्स देखें तो उनमें टॉम लेथम, डेवन कॉनबॉय, मार्क चैपमैन, जेम्स निशम, मिचेल सेंटनर और रचिन रविंद्रा, ये सारे लेफ्टीज हैं। बिल्कुल। तो वी हैव सीन दे बोल्ड रियली वेल देयर ऑफ स्पिनर्स अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है नीदरलैंड्स की बॉलिंग अटैक के लिए। सिर्फ एक बॉलर है उनके जो मिक्रीन है, उनको थोड़ा सा स्ट्राइक ज़्यादा करना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे बॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जो पार्टनरशिप्स लगी थी पाकिस्तान ने जो लगाई थी वो इन्हीं की वजह से मुझे लगता है, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग एज अ बॉलिंग यूनिट कि ये अच्छा करेंगे मिडिल ओवर्स में, हमें विकेट्स दिलवाएंगे, जो कि नहीं हो पाया। तो आज अगर ये अच्छा करेंगे विद दोज 2 ऑफ स्पिनर्स, मुझे लगता है कि ये अच्छा कर सकते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ऑलराइट, एंड विद दैट हम आपको बराह रास्त लेके जा रहे हैं वापस वेन्यू पे, जहां पे दोनों कप्तान जो हैं इस वक्त बाहर रवाना हो रहे हैं टॉस के लिए। इट्स टाइम फॉर अ फ्लिप ओवर। It's a very good afternoon to you all, and we're all set for the toss here. I've got the 2 captains alongside Tom Latham, captain of New Zealand, Scott Edwards, captain of Netherlands, Andy Pycroft is our match referee, and we've got the Oppo representative as well. We'll hand over the coin to the match referee, and Tom Latham will spin it. Oh, shit, that's over there. There's a head. It's come down as heads, and it seems like Netherlands have won the toss. What are you going to do? We're going to have a bowl first. And the reasons for that? From the last game, it seemed like bowling conditions were a little bit better earlier in the day. There's obviously no real dew factor, so it should be pretty good all day, to be fair. And good game, last one. Despite the loss, you would be feeling pretty upbeat about this game? Yeah, I think we're in a good place. That's the sort of level we've started at, and we've just got to lift from there, make sure we cash in when we've got the chance to win games. And have you made any changes at all from the last game? I'm hearing about an injury to one of your key players. Yeah, we've got 2 changes. So we've got Sabrant Engelbrecht coming in for Saqib, and we've got Ryan Klein coming in for Logan. Right, all the best today. Cool, cheers. Oh, that's pretty Yeah, you too, man. So Tom, had you won the toss, what would you have done? Yeah, we would have had a bowl, but again, looks a decent surface. It's obviously its second game on it. I think they played a practice game on it last week, so hopefully we can put some runs on the board and defend later on.
and terrific win in the last match. I mean, you guys just rolled England over. Yeah, it was obviously a fantastic performance. Guys played really well and both facets of the game. Thought the bowlers did a fantastic job up front, and then obviously that partnership between Devon and Rachin was fantastic. But we understand that was a couple of days ago. There's 2 more points up for grabs. This game, which is just important for us. And what about your team and fitness issues? What are we seeing? Any changes at all? Yeah, we've got one change. So Lockie Ferguson comes in for James Neesham. All the best, Tom. Cheers, thank you. So the news from the centre is Netherlands have won the toss and they've elected to field first. All right, there you have it. Netherlands winning the toss and have elected to bowl first. Wasim, you think क्योंकि बाद में न्यूजीलैंड की कप्तान का हम भी पहले बॉल करते. Do you think dew is the factor that they're all anticipating over there? I think so. We have seen quite a few games so far in this World Cup के second batting में wicket थोड़ी आसान हो जाती है बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर. थोड़ी सी भी ड्यू गिरती है, एक तो 2 चीज़ें होती हैं. एक तो जो विकेट है ड्राइनेस वो जुड़ जाती है थोड़ी सी ड्यू से, और सेकेंडली जो बॉल है आपका बॉलिंग साइड के लिए, बॉल की सीम एक दफ़ा गीली हो जाए, बॉल शायद ड्राई हो जाता है बट द सीम इटसेल्फ वो ड्राई नहीं होती. तो धागा होता है तो इसीलिए वो सीधा सीधा लाइक कॉन्क्रीट लाइक सीमेंट की तरह बॉल आता है. टर्न भी कम होता है अनलेस until it's a big turner. That's why I think a lot of teams will opt out to bowl first. All right, with that, we're going to take another break right here on the Pavilion. But when we come back, we get closer to the action and we have some more remarks from our legends. Don't go away. Keep watching A Sports and Sports and the Airwise app. Welcome back to the Pavilion. और सूरत हाल इस वक्त ये है कि नेदरलैंड्स ने टॉस जीत लिया है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड बैटर्स वर गोइंग टू बैट. पिच रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली थी. अब देखना ये है कि क्या ड्यू फैक्टर जो है वो बाद में जाके प्ले इन करता है कि नहीं करता. प्लेइंग 11s आ गई हैं दोनों टीमों में, कुछ चेंजेस हैं. Here's the first team coming up. Wasim, take us through. वन चेंज आई थिंक उन्होंने किया है पिछले मैच से. फर्गसन को ले आए हैं, नीशम को निकाल दिया. सो इनके पास तो एक मिसिंग लिंक जैसे कहते हैं था, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर 150K वाला, वो आ गया वापस. सो दैट्स अ गुड साइड. सो हेनरी बोल्ड रियली वेल इन द प्रीवियस गेम. फर्गसन बोल्ड 3 फास्ट बॉलर्स. Then they have Centener, who is one of my favorite bowlers. Or in general, couple of all-rounders. There's a very good side and a complete side, I must say. Yeah, they are. They're looking really good. Netherlands की टीम पे नजर डालते हैं. Moin, take us through, please. I think जो पिछले मैच में जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, जो 11 है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो ज़रूर मिला होगा. पाकिस्तान की जी 2 चेंजेस हुई हैं. यहाँ पे इम्पोर्टेंट इनके लिए यही होगा कि इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. बॉलर जिस तरह मलिक ने बात की थी कि लेफ्ट हैंडर इनकी टीम में मौजूद है, तो उनके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर जो है मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. शोएब, ये चेंजेस के बारे में बताएं नेदरलैंड्स की जरा. 2 चेंजेस हैं इनकी टीम में. एक मेरे ख्याल में क्लेन आए हैं और दूसरा जो है उनका नाम प्रनाउंस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनका जो नंबर है 1 2 3 4 5 5th नंबर पे हैं. ये 2 चेंजेस हैं उनकी. एक उनके इंजर्ड हुए हैं हैमस्ट्रिंग के, और दूसरा उन्होंने कंडीशंस को नाम जहन में रखते हुए ये फोर्स्ड 2 changes they've made in this side. Yeah. Do you think it's a good thing to make 2 changes in this game because न्यूजीलैंड की टीम है, they're looking really good. इंजरी वाली तो समझ में आती है. दूसरी आई गेस उन्होंने ये ज़रूर सोचा होगा कि what we missed against पाकिस्तान, तो कंडीशंस को देखते हुए इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने जो सेकंड चेंज किया और अच्छी फोर्स चेंज थी. और आई गेस एक आधी चेंज जो है वो होती रहती है हर टीम में. हर टीम में होती रहती है, बिल्कुल होती रहती है. एक आधी चेंज जो है तो 11 में आप देखेंगे जैसे लुकी फर्गसन आए, उसका रीज़न ये था कि उन्होंने हारिस रऊफ को देखा कि उन्होंने एक ऐसी पेस जनरेट की जिससे नीदरलैंड्स जो है उनके बैटर स्ट्रगल किए. वरना एट वन स्टेज दे वर गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. और ये अच्छी चेंज है. और दूसरा मुझे ये लगता है कि जो नीदरलैंड्स ने पहले बॉलिंग की है वो इसी वजह से की है कि उन्होंने देखा कि उनके जो स्पिनर्स हैं उनको हेल्प मिला, स्पिन भी हुआ, बाउंस भी मिला. और एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे याद रखनी चाहिए, जो टॉम लिथम ने बोला कि अगर मैं भी टॉस जीता तो पहले बॉलिंग करता जी, क्योंकि जो भी है केन विलियमसन उनके कैप्टन हैं, नहीं खेल रहे, इंजरी है उनको, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम हैदराबाद सनराइजर्स से IPL का टीम का हिस्सा भी रहे और कैप्टनसी भी किया, एंड ही इज़ वेरी फेमिलियर विद द कंडीशन. Right on. And with that, it's time for Palmolive Natural Expert Predictions.
राइट, एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस का टाइम है, शुरू करते हैं। शोएब मलिक, आप ही से शुरू कर लेते हैं। न्यूजीलैंड, ओके। मोइन, फॉर यू? वेल ऑफ कोर्स मुझे तो लगता है बिल्कुल क्लियर है, न्यूजीलैंड खेले पहला मैच। ऑलराइट, वसीम, फॉर यू? न्यूजीलैंड, गुड साइड, दे जस्ट बीटन द वर्ल्ड चैंपियंस एंड दे ऑन द राइट ट्रैक। न्यूजीलैंड, ऑलराइट, ऑल फोर न्यूजीलैंड एंड दोस वर योर एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस ब्रॉट टू यू बाय Palmolive Natural। राइट जनाब, और उसके साथ ही वक्त हुआ है टू लुक आउट फॉर द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। योर प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? Ravindra. Wasim, for you? I'll go for Lukey Ferguson from New Zealand. Ferguson. Moin, आपके लिए? Latham. And Daryl Mitchell. Daryl Mitchell. From New Zealand. From New Zealand, Mitchell. All right. And किसकी? Latham की? चलें। And those are the players to watch out for, brought to you by Ufone। Alright जनाब, तो ये थे players to watch out for। आपने कहा लेथम की बारी नहीं आएगी, मिसबा, इसके पीछे क्या राज है? टॉप ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका, कॉनवे और रविंद्रा जिस फॉर्म में है, और 3 ऊपर के बैटर्स हैं। लेथम नॉर्मली बैट्स एट 5, 4 पे मिचेल आएगा, तो होपफुली जिस तरह की इनकी बैटिंग लाइनअप और फॉर्म चल रही है, मुझे लगता है कि ऊपर के 3 बैट्समैन कोई ना कोई कैश करेगा। तो उनके ऑफ स्पिनर्स भी तो अच्छी फॉर्म में। हाँ, ये इट डजंट मैटर, ऑफ स्पिनर तो पहले भी खेले हैं उनके अगेंस्ट। नहीं, लेकिन इन कंडीशंस में नहीं खेले। अगर पाकिस्तान वाला वो बाउंस के साथ स्पिन हुआ, पिच नजर आ रही है और थोड़ा बहुत भी वाज़े तौर पे मिसबा दोनों आपसे एग्री नहीं करते। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मिसबा अपने आप से भी एग्री नहीं करेंगे अगर 2 विकेटें गिरेंगी शुरू में। मैंने पता है, और मजे की बात पता है क्या है? मुझे पता था ये होगा, और अब देखिए ये होगा, और अब 150 में टीम बुक हो जाएगी। मजे की बात पता है क्या है? फिर बाद में पता है क्या कहना है, मैं ते क्या सी। I wish कि हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं वो रनिंग कमेंट्री जो हमें सुनने को मिलती है जब हम मैच देख रहे होते हैं मिसबा से। जो हमें जो मिलती है ना, वो एक बिल्कुल हाई लेवल इंटेलेक्चुअल क्रिकेट का जो है ना, उसकी एक रनिंग कमेंट्री मिलती है 24/7 जो आपकी समझ में नहीं आती है। जो आपकी समझ में नहीं आती। नहीं, हम चारों की समझ में नहीं आती भाई, सिर्फ मेरी नहीं, हम चारों की नहीं आती समझ। I check out। वसीम भाई तो चेक आउट करके चले जाते हैं। वैसे भी 100 किलो खाना खा के किसको समझ आएगी? 100 किलो खाना कोई नहीं खाता, मिसबा सिर्फ 2 टन गोश्त खाते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कम खाता हूँ उनसे, ये बात भी दुरुस्त है। That's debatable। That is not debatable। पपीता There is no debate on that। ये सिर्फ पपीता खा रहे हैं आज। हाँ, ये मैं सिर्फ पपीता खा रहा हूँ आजकल। आपको हमारी कॉन्वर्सेशन से अंदाजा हो जाना चाहिए कि we have nothing more to say, but we still have to stay on air. So I do apologize to all of you for that. However, gentlemen, thank you very much. This is going to be really fun. Best of luck to both the teams, New Zealand and Netherlands. आप लोगों से मुलाकात होगी at the end of the day. Keep watching the Pavilion right here on A Sports, 10 Sports and the Airwise app. And now we'll be taking you momentarily to see the action live. We'll see you on the other side.